Good morning, everyone. 11th Commerce Economic Chapter number 10 Budget. Now, the concept is types of deficit in a budget. Budgets can be balanced or unbalanced between the total income and total expenditures. कभी ये बैलेंस पे भी हो सकता है तो कभी ये अनबैलेंस भी हो सकता है. An unbalanced budget can have a surplus or a deficit. या तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम मिलेगी या तो हमें लॉस सफ़र करना पड़ेगा. So the types of deficit in a budget with specific reference to India's are as follow. First आता है हमारा revenue deficit. Revenue deficit arises when the total expenditures of government on the revenue like a current account is more than the total receipt of the government on the revenue accounts. In short, जो हमारा current account होता है, current account के expenditures income से कैसे हो high ज़्यादा, तो वहाँ पर जो हमारी डेफिसिट अराइजेस होती है वो कैसी अराइजेस होती है? रेवेन्यू डेफिसिट. Revenue accounts contains current transaction of the government, and a deficit in this accounts in a simple sense means that the government is not able to meet its routine expenditures from its current incomes, and this shows indifferent inefficient working of the government machineries. Such as a deficit can be made by the greater borrowing of the capitals and on the capital accounts. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने करंट अकाउंट्स के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो उसको फुलफिल नहीं कर पाते, हमारे पास इतना इनकम होता नहीं. सो यहाँ पे जो डेफिसिट अराइज होगी दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट और अ करंट अकाउंट डेफिसिट. नेक्स्ट आता है बजटरी डेफिसिट. When the total expenditures, current as well as capital account, is greater than the total income, current as well as capital in a budget, then budgetary deficit is said to be have arisen. Means what? Here says that when capital and current account, both the accounts expenditures is higher than the capital and current accounts income, दोनों अकाउंट्स की जो एक्सपेंडिचर्स है वो इनकम से हाई हो, देन द डेफिसिट अराइजेज, जो लॉस अराइजेज होता है दैट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट. उसको हम बजटरी डेफिसिट के नाम से जानते हैं. The central government incurs deficit. Financing borrows from RBI to meet their deficit, and the state government borrows more from the central government, which is called overdraft. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मनी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास से लोन लेकर के अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेकर के अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, एंड दैट लोन इज़ नोन एज ओवरड्राफ्ट. सो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आता है फिस्कल डेफिसिट. The borrowing of a government from the market are considered as a income of the capital accounts. However, this is a debt created by the government and must not be included as a source of income, and hence if the market borrowing are added in the budgetary deficit then we get the fiscal deficit. In short में अगर कहा जाए तो अपने एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर मार्केट से लोन लेकर के आती है. जो लोन लेकर के आती है वो लोन फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानी जाती है. नाउ फिस्कल डेफिसिट इज देयरफॉर हायर देन द बजटरी डेफिसिट. इन अदर वर्ड्स लाइक फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल इनकम. मान लो कि आपने 100 रुपीज़ का एक्सपेंस किया है और आपको जो इनकम है वो 80 रुपीज़ की मिली है. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि 100 रुपीज़ जो आपने एक्सपेंस किए, 80 रुपीज़ की आपकी इनकम माइनस कर दी, 20 रुपीज़ अभी भी मुझे पेमेंट करना बाकी. तो 20 रुपीज़ पे करने के लिए मुझे मार्केट से कहीं ना कहीं से लेकर के आना पड़ेगा. तो जो आप ये 20 रुपीज़ मार्केट से लेकर के आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. नेक्स्ट आता है लास्ट प्राइमरी डेफिसिट. दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडियन बजट. हमारे इंडियन बजट के अंदर ये पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट है. लेट्स सी हियर. प्राइमरी डेफिसिट इज द ऑब्टेन आफ्टर द डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट. Interest payments constitute an important part of the government expenditures, but these are not expenditures actually incurred on the current activities but are an inevitable burden to be paid for amount borrowed in the past. Hence,
This concept of deficit takes out interest payment from the fiscal deficit. This concept doesn't have पॉलिसी सिग्निफिकेंस. इसका कोई भी पॉलिसी नहीं है, इसको अप्रूवल उतना ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट ने मिला नहीं है. दूसरी बात अगर कही जाए तो फिजिकल डेफिसिट में से आप जो उसको पे करने के लिए इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, दैट इंटरेस्ट रेट इज़ नॉन एज प्राइमरी डेफिसिट. इस तरीके से हमने 4 डेफिसिट सीखी आज. पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, जब करंट अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाए, दैन डेफिसिट इज़ नॉन एज रेवेन्यू डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. सेकंड आता है बजटरी, करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स के एक्सपेंडिचर्स उसकी इनकम से ज़्यादा हो, दैन दैट डेफिसिट इज़ नॉन एज बजटरी डेफिसिट. नेक्स्ट आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, मार्केट से जो हम फंड लेकर के आता है अपने इंटरेस्ट को एक्सपेंडिचर्स को पे करने के लिए, दैट फंड इज़ नॉन एज फिजिकल डेफिसिट. इन फ्यूचर में वो हमें पे करना पड़ेगा. और फिजिकल डेफिसिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको पेमेंट करने के लिए जो हम एक्सपेंस करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट. इस तरीके से 4 की 4 डेफिसिट है, इसको आपको अच्छे से करना है. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच.